सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सिख धर्म दे बानी धन सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह तिन्हां दे पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण किए हुए पावन श्लोक, जो श्लोक 12 ते वधीक अंदर सुभाईमान ने, तिन्हां दी लड़ीवार विचार आप जी नेता प्रति सर्वण करते आ रहे हो। विचार अधीन 20 नंबर श्लोक, जिसका मूल पाठ हुणे आप जी ने सर्वण किया है। ये पावन श्लोक ही आज की विचार का केंद्र है। विचारा की आरंभता तो पहला मन बिरतियां एकाग्र करदियां होया कलगीधर पिता सरबंस दानी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई प्यार भरी असीस गुरु फतेह नाल सान पाइए सारे आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह श्लोक की आरंभता विच फरमान करते ने, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। ये भाई जे तेनों प्रभु प्रेम की खेड खेडन का चाह है, जे तू रब दे नाल प्रेम की खेड खेडनी चाहता है,
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕਿ ਭਾਵ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ। तो पहला मरण कबूल करना है। मरण तो भाव कि अपने हंकार नूं मारन वास्ते तू तैयार है, स्वार्थी जीवन नूं खत्म करन वास्ते तू तैयार है। पहला मरण कबूल कि तेनूं ये शर्त कबूल है। तीन प्रकार का मरना हुंदा है, पर इत्थे जिस मरण की गल चल रही है वो शरीरिक मौत की नहीं। इत्थे जो मरण की गल चल रही है वो आत्मिक मौत की नहीं। पहली जिहड़ी मौत है वो शरीरिक मौत है। जदों साडे अंदरों श्वास खत्म हो जाते हैं, साडे अंदरों श्वास रुक जाते हैं,
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੈ। दूसरे नंबर की मौत है आत्मिक मौत, कि जमीर का मर जाना, आत्मिक अंदर की मौत हो जानी। ये मौत किवें हुंदी है? जदों साडे अंदरों परमेश्वर की याद विसर जाए, साडे अंदरों उस प्रभु का नाम विसर जाए, उदों साडी आत्मिक मौत हुंदी है, जिसनों हजूर आखदे ने बाणी अंदर कि आखां जीवा विसरै मर जाओ। जदों रब विसरदा है ते मेरी आत्मिक मौत हो जाती है। तीसरी मौत है जिसका बाणी में जिक्र आया है, वह है विकारां वालों मरना। विकारां वालों अशु होना, विकारां दे नालों सांझ तोड़ लैनी, जिसनों हजूर आखदे ने कि शब्द मारो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। शब्द मरो, शब्द दे नाल जुड़ के विकारां वालों भाई मरो, फिर दोबारा मौत नहीं होएगी, आत्मिक मौत नहीं होएगी। जदों शब्द के नाल जुड़ के सी विकारां वालों मर जावांगे। सतगुर आखदे ने भाई ये तीन तरह की मौत है, सरीरक मौत, आत्मिक मौत अते विकारां वालों मरना, विकारां वालों मौत हो जानी। हुण सतगुरु जी इस पावन श्लोक के अंदर जिस मौत का जिक्र कर रहे हैं, वो है विकारां वालों मरना। ते बादशाह आखदे ने कि रब दी ये पहली शर्त है कि तेनों ये शर्त परवान है, पहला मरण कबूल, जीवन की षड आस हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। तू आपा भाव त्यागन नूं तैयार है, ये शर्त तेनू परवान है। तू अपना स्वार्थी जीवन त्यागन वास्ते तैयार है। जे बादशाह आखदे ने तैयार है ते हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास, फिर तू मेरे को ला। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, जी तेरे अंदर चाह है, प्रेम की खेड खेडन का तेरे अंदर शौक है, जे तू सच नाल तेरा प्यार है, सच नूं पालना अपने अंदर तेरा शौक है, फिर तू आ। ये जिहड़ी खेड है प्यार दी, ये मजबूरी बस नहीं खेडी जा सकती। ये जिहड़ी खेड है ये किसी डर दे वस नहीं खेडी जा सकती। ये जो प्रेम की खेड है ये किसी लालच वस नहीं खेडी जा सकती, इति प्रेम बस खेडी जा सकती है। इति प्रेम का मार्ग है। साच कहूं सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इति प्रेम का मार्ग है, प्रेम की खेड है, जिसनों बाबा कबीर साहब आखदे ने, कबीर जो तो साध पिरम की। साध का अर्थ जे तेरे अंदर शिद्दत है खेडन दी, प्रेम की खेड जे तू खेडनी समझना है। कबीर जो तो साध पिरम की, शीस काट कर गोए। शीस काट सिर कट्टन तो भाव तू अपने हंकार नूं कट के गेंद बना लै, बॉल बना लै। खेलत खेलत हाल कर, जो कुछ होए ता होए, तू इन्ना मस्त होके खेल। ये प्रेम की खेड कि तेरे अंदरों ये गल विसर जाए, खत्म हो जाए कि लोग की आखणगे, लोग की कहणगे। लोक राज की परवाह
तेरे अंदरों खत्म हो जाए, ये प्रेम की खेड खेड़द्या होया। पर गुरु नानक साहब आखदे ने, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, तां तू मेरी गली विच आ। जे सिर धर, तू सिर तली ते टिकाउणा चाहुंदा है, तू स्वार्थी जीवन में मरना चाहुंदा है, आपे भाव वालों, खुदगर्जी वालों, बुराइयां वालों, अवगुणा वालों तू मरना चाहुंदा है, पर यह मरना बड़ा औखा है, बहुत औखा। इस मरण तो डर लगता है, अंदर कंबदा है। जिसनू बाबा कबीर साहब आखदे ने, कबीर जिस मरने ते जग डरै। संसार के लोग डरते ने, हाय दे लोभ छड़ दिता, निंदिया चुगली छड़ दी, पराया हक मारना छड़ दिता। जे जीवन नू निर्मल ते सचियारा बना लिया तो फिर की होवेगा? असीं ते रह नहीं सकते समाज विच, समाज दे नाल चल नहीं सकते। जरूरी है समाज विच रहण वास्ते, मनो कहंदा है कि निंदिया चुगली, रिश्वत, पराया हक मारना, बेईमानी करनी, ये चीज़ां लाजमी ने। अपने अहंकार नूं अंदर पालना ये लाजमी है, क्रोध अंदर रखना ये जरूरी है। पर मनुख इन्हां चीज़ां नूं छड्डण वास्ते तैयार नहीं, डर रहा है। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, बाबा कबीर साहब आखदे ने कि उस मौत नाल ते मेरे अंदर आनंद पैदा हुंदा है। मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, मरण दे नाल ही पूर्ण परमानंद प्रभु दी प्राप्ति होवेगी। ते बाबा कबीर साहब आखदे, मैं मर के आनंद प्राप्त किया है। मरण तो भाव फिर अर्ज करा कि शरीरिक मौत की गल नहीं चल रही, बुराइयां वालों, विकारा वालों, अवगुणा वालों मरण की गल चल रही है। ते बाबा कबीर साहब आखदे कि मैनू आनंद की प्राप्ति हुई है। कबीर जा दिन होम हुआ, बाची भया आनंद। जिदन तो मेरे अंदरों ये आपा भाव खत्म हो गया है, उदों तो जिंदगी अंदर आनंद आ गया है। पर संसार के लोग डर रहे हैं। जिह मरने सब जगत तरासिया, बाबा कबीर साहब जी, सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया। जिस मरण को संसार के लोग डरते ने, बाबा कबीर साहब आखदे ने, उस मरण की जिहड़ी सोची है ना, मैनू शब्द के द्वारा पई है। जिह मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया। अब कैसे मरो मरण मन मानिया, मर मर जाते जिन राम ना जानिया। बाबा कबीर साहब आखदे ने, हुण मेरे अंदर की मौत नहीं हो रही, हुण मेरा मन मर नहीं रहा, अब कैसे मरो? मरण मन मानिया, क्योंकि मेरे मन ने मरण नूं कबूल कर लिया है। किहड़े मरण? विकारा वाली मौत नूं मेरे मन ने कबूल कर लिया है। विकारा वालों मेरा मन मर गया है, इस करके हुण मेरी आत्मिक मौत नहीं हो रही। आत्मिक मौत कदों हुंदी है? बुराइयों में फस के। ते जदों बुराइयां वालों ही इंसान मर जाए, बुराइयां वालों सांझ तोड़ लवे, ते फिर अंदर की मौत नहीं होगी। अब कैसे मरो? मरण मन मानिया, ते आखदे ने मर मर जाते जिन राम ना जानिया। पर किहड़े मरदे ने? जिन्हां ने रब नूं समझिया नहीं,
जिन्हां ने रब दे नाल साझ नहीं पाई। मरनो मरण कह सब कोई, सारे मरण की गल करते हैं, पर आखदे ने सहजे मरै अमर होए सोई। ਜਿਹੜੇ अडोल अवस्था ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ विकारां ਵੱਲੋਂ अशोक हो जाते ने, उन्होंने आत्मिक जीवन मिलता है। मरनो मरण कह सब कोई, सहजे मरै अमर होए सोई। कहो कबीर मन भया आनंदा, गया परम रहया परमानंदा। फिर अंदरों भरम निकल जाता है। आत्मिक जीवन मिल जाए तो फिर सਦੀवी आनंद की, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इसी भाव का एक होर वचन असी बाणी अंदर पढ़ने हाँ। सतगुरु जी फरमाउंदे ने, क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए। मरना की हुंदा है ते किवें मरिया जाना है। पातशाह कहते हैं इस गल की समझ नहीं। मैनू शरीरिक मौत का तो पता है, पर आत्मिक मौत की समझ नहीं मैनू। क्या जाना कि वो मरेंगे कैसा मरना होए। मरना की हुंदा है ते किवें मरिया जाता है। जे अपने अंदर नूं विकारा वालों मारना है, आत्मिक जीवन जियाना है, ते इहदे वास्ते समझ चाहिए है। ते पातशाह आखदे ने, जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहिला मरना होए। जे रब की याद साडे अंदरों ना विसरे, रब ना भुले, ते भाई बुराइयां वालों मरना सौखा हो जाता है। विकारां वालों मरना सौखा हो जाता है जे रब की याद अंदर है। पर फिर पातशाह आखदे ने, मरने ते जगत डरै, जीविया लोड़े सब कोए। कबीर जिस मरने ते जग डरै, संसार के लोग डर रहे हैं। डरन तो भाव कि विकारी जीवन त्यागन को तैयार नहीं है। इस मौत को समझन को तैयार नहीं। अंदर खौफ है, अंदर डर है। ते पातशाह आखदे ने कि भाई मरने ते जगत डरै, जीविया लोड़े सब कोए। गुर प्रसादी जीवत मरै, हुक्मै बुझे कोए। गुर प्रसादी जो गुरु की मत लैके जीवत मरै, जिउंदियां जी विकारां वालों अशोक हो जाते हैं, विकारां तो बाहर निकल जाते हैं। गुर प्रसादी जीवत मरै, हुक्मै बुझे सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरै, तां सद जीवन होए। जेड़े रब के हुक्म नूं समझदे ने, ये नानक विकारा वालों मर के ही तां सद जीवन होए, तां सदीवी आत्मिक जीवन की प्राप्ति होंदी है। पर ये आत्मिक मौत, आत्मिक जीवन, विकारा वालों मरना ते विकारा विच पै के असीं किवें जिउ रहे हां। पर इस गल की समझ शब्द के द्वारा पैंदी है। सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया। जो शब्द की विचार के नाल जुड़ांगे तो सानू आत्मिक मौत ते आत्मिक जीवन की समझ पवेगी। जो गुरु नानक साहब जी समझा रहे हैं, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। जे तेरे अंदर प्रेम की खेल खेडन का चाह है, शौक है, तेनू तेरे अंदर उत्साह है, लगन है, फिर तू अपना हंकार तली ते टिका के आ। ते बादशाह आखदे ने, इत मार्ग पैर धरीजै। जे तू प्यार वाले रस्ते ते मार्ग ते पैर धरना है, जे तू चाहना है कि मैं भी प्यार वाले मार्ग पे चला,
जिथे प्यार ही प्यार है। ते पातशाह आखते ने सिर दीजै कार न कीजै, ਉਹਦੇ वास्ते सिर अर्पण कर। हंकार गुरु ਨੂੰ अर्पण कर दे। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनों सिर सौंपीए विचों आप जाए। आपा भाव त्याग दे। बड़ी वड्डी रुकावट है हंकार। पर जिन्हां ने हंकार ਨੂੰ पासे कर दिता, हंकार ਨੂੰ पासे करके जिन्हां ने ये प्रेम की खेड खेडी, वो प्रवान हो गए। बिरध बाबा गुरु अमरदास जी, लोगों ने बने ताने मेने मारे कि तुसी कुड़मां दे घर आके नौकरी चुक रहे हो, इत्थे आके सेवा कर रहे हो। पर उन्होंने झिझक नहीं मनी, उन्होंने लोक लाज की परवाह नहीं की। ते गुरसिੱਖੀ ਨੂੰ सेवा ਨੂੰ कमा रहे ने प्रेम विच आके, किसी लालच विच नहीं, स्वार्थ विच नहीं। बस आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है सेवा करके, गुरसिੱਖੀ ਨੂੰ कमा के आत्मिक आनंद खेड़ा ते सुकून प्राप्त हो रहा है। ते पातशाह आखते ने इत मार्ग पैर त्रीजै सिर दीजे कार ना कीजे। तू झिझक ना, लोक लाज नूं तू छड्ड, लोग की कहणगे। ये बड़ा वड्डा रोग है, ये बड़ा वड्डा साडे अंदर एक अवगुण है, एक साडी कमी है कि लोग की कहणगे। नहीं, ये आखना है इस चीज नूं त्यागना है। ये आखना है कि गुरु की आखेगा, लोग की कहणगे इसकी परवाह त्यागनी है। परवाह ये करनी है कि गुरु की आखेगा, गुरु की कहता है। ये नहीं आखना कि लोग की कहते हैं। बाबा कबीर साहब आखते हैं जिहड़े दुनिया के पिछे चलते हैं वो फिर गुरु वालों बेमुख हो जाते हैं। आत्मिक जीवन का जिहड़ा सरमाया है, आत्मिक जीवन की जिहड़ी पूंजी है, उसको गवा लेंदे ने लोकां विच चल के। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफर अपने हाथ। ते बादशाह आखदे ने इह मार्ग ते ऐसा है, इन्ने बेपरवाह होके चलिए कि परवाह ना ही किसी केरी, बात सच्चे ना। उस सिख तो बिना साडे अंदर किसी दूसरे की परवाह ना होवे, गुरु की परवाह होवे, रब की अंदर परवाह होवे, जिसनों पातशाह आखदे ने कि अब हम चली ठाकुर पहार, सारे आसरे त्याग के। जब हम शरण प्रभु की आई, राग प्रभु भावे मार। हे रब हुण भावे मार भावे रख, मैं दुनिया के आसरे त्याग के तेरी शरण में आ गई हाँ। लोकन की सुतराई मां ते मैं संतर जार। कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है डार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुम्हारी, तिस राखो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी, हर जियो हर लाखो लाज मुरार। हुण कोई दुनियादारी की परवाह नहीं, लोकाचारी की परवाह नहीं है। ते पातशाह आखते ने ये निशानी है। भाई लैणा जी आए गुरु नानक साहब जी की शरण अंदर, लोगों ने बड़े ताने मेने मारे, बड़ियां गल्लां कीतियां, पर गुरु बचना नाल जुड़ के भाई लैणा जी की सुरत इन्नी उच्ची हो चुकी सी, मन इन्ना मजबूत हो चुका सी कि संसार के लोगों दी गल्लां दा असर ही नहीं हो रहा। सुरत इन्नी उच्ची हो गई, मन इन्ना मजबूत हो गया, हुण परवाह ही नहीं। क्योंकि जिस मार्ग पे वो चल रहे हैं वो मार्ग बड़ा निर्मल है, बड़ा सोहना है।
ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਖੇ ਮਾੜਾ ਆਖੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹਿ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾਨਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਲੋਕ ਕੇ ਨਿੰਦੇ ਬਪੜਾ, ਜਿਹ ਮਨ ਨਾਹੀ ਗਿਆਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ। हे भाई, जे तू इस रस्ते ते पैर धरना है, सिर दीजै। तू आपा भाव गुरु नूं अर्पण कर, आपा भाव त्याग। हर जीओ हंकार ना भावी, उस हरि हंकार पाउंदा नहीं। कान ना कीजै तू झिझक ना, सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लुकानी। कि सखी ये रब नूं मिलन दी निशानी है, तू लोक लाज नूं त्याग दे। मन ते तन अर्पण कर, लोक लाज नूं त्याग। सो इस तरीके दे नाल पातशाह आखदे कि भाई प्रेम की खेड खेडदियां होइयां फिर सानूं सफलता मिलती है। गुरु साहब किरपा करन, पढ़ी सुनी गुरबाणी के विचार साडे सबनां दे हिरदियां विच वसे। कोई भुल चुक दी खिमा अदब सत्कार नाल आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।